Hello and welcome. Welcome to learning session number 4 of chapter number 3, which is life processes in living organisms part 2. So far in this chapter, we have seen introduction, and then we had seen asexual reproduction in unicellular organisms pehle, and then we had seen multicellular organisms mein how asexual reproduction occurs. Okay. Then in today's learning session, we're going to see sexual reproduction in plants. Okay, this is not on, this is in. So sexual reproduction in plants. There are two subtopics under this one big topic. The first is parts of flower and second is pollination. So in this learning session, we're only going to see parts of flower, and pollination we will see in our next learning session. The new words we're going to learn today are: first is offspring, next is fusion, third is progeny, and last is accessory. Okay, offspring, fusion, progeny, accessory. So we are beginning with sexual reproduction. Okay, so sexual reproduction always occurs with the help of two germ cells. Okay, sexual reproduction will always occur with the help of two germ cells. फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट आर दोस टू जर्म सेल्स. वो दो जर्म सेल्स कौन से होने वाले? एक होने वाला फीमेल गैमेट, दूसरा होने वाला मेल गैमेट. तो इन दोनों को जर्म सेल्स बोलते हैं, फीमेल और मेल गैमेट को. नेक्स्ट, two main processes occur in sexual reproduction. Okay, which are those processes? First is gamete formation. पहले वो जो gametes है, germ cells है, वो form होने पड़ेंगे. And then next is fertilization. Okay. Next, gametes are formed by meiosis. Okay, gametes are formed by meiosis. In the chapter number 2, we had seen there are two types of cell division, right? First is mitosis, second is meiosis. So gametes कैसे form होने वाले? Meiosis से form होने वाले. In meiosis, chromosome number is reduced to half. So if you remember that chapter and if you remember that learning session where we discussed meiosis, वहां पे जब भी meiosis होता है तो chromosome number आधा हो जाता है. Hence haploid gametes are formed. Haploid मतलब again we had learned this in chapter number 2. Haploid यानी जिसमें एक ही सेट होगा हर क्रोमोसोम का, दैट इज नोन एज अ हैप्लॉइड सेल. ओके, सो मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर आधे होने वाले, दैट्स व्हाई गैमेट्स किस टाइप के होंगे? हैप्लॉइड होंगे. ओके, नेक्स्ट, अ डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस बाय यूनियन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स. तो ये जो दो हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेट्स है, ये लोग दोनों जब फ्यूज हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, देन एक डिप्लॉइड जाइगोट बनने वाला है. ओके, डिप्लॉइड मतलब क्या? डिप्लॉइड नहीं जिसमें दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है. तो जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म. तो ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ है वो माइटोसिस से डिवाइड होकर एम्ब्रियो फॉर्म होने वाला है, एंड एम्ब्रियो डेवलप्स टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, और वो एम्ब्रियो से एक नया इंडिविजुअल बनने वाला है. ओके, so sounds very complicated when you write this in 3 points, but a better way to look at it is using a flow chart. Okay, so I have made this flow chart. So if you have a parent first will be gamete formation. Okay, और गैमेट फॉर्मेशन कैसे होने वाला है? मियोसिस से होने वाला है. सो गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस से एक मेल गैमेट मिल जाएगा और एक फीमेल गैमेट मिल जाएगा. इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स बोलते हैं. ओके, सो ये मेल और फीमेल गैमेट्स ये हैप्लॉइड सेल्स होंगे. ओके, हैप्लॉइड मतलब क्या? एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा. और ये मेल और फीमेल गैमेट जब साथ में आ जाएंगे, साथ में फ्यूज हो जाएंगे. फ्यूज यानी साथ में आना. ओके, कमिंग टुगेदर. सो व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेस टुगेदर वी गेट जाइगोट. अभी एक हैप्लॉइड प्लस एक हैप्लॉइड जब साथ में आता है तो डिप्लॉइड बन जाता है. क्यों? क्योंकि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मेल के पास होगा, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम फीमेल के पास होगा, तो दोनों साथ में आ जाएंगे तो दो सेट मिल जाएंगे, और दो सेट को क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड बोलते हैं, राइट? तो जाइगोट तुम लोग का डिप्लॉइड होगा. जाइगोट फिर बाद में डिवाइड होने वाला है माइटोसिस से. यहाँ पे क्या है? मियोसिस, यहाँ पे है माइटोसिस. तो माइटोसिस से डिवाइड होकर जाइगोट क्या बनने वाला है? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में से एक न्यू इंडिविजुअल तैयार हो जाएगा. ओके, अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू फॉर्म. So in this one flowchart, I have summarized the entire process. Okay, so make sure you all copy this flowchart in your notebooks. Next, two parents, that is male parent and female parent, are involved in this type of reproduction that we had already seen, right? Sexual reproduction mein you need two parents. Asexual reproduction mein you need only one parent. Okay, next, fusion of male gamete of male parent and female gamete of female parent occurs. Okay, फ्यूजन मतलब क्या? मैंने आई हैव टोल्ड यू, राइट? फ्यूजन मींस कमिंग टुगेदर. ओके, सो फ्यूजन ऑफ किसका? मेल पेरेंट का मेल गैमेट, फीमेल पेरेंट का फीमेल गैमेट, ये दोनों फ्यूज होने वाले. ओके, ड्यू टू दिस न्यू इंडिविजुअल ऑलवेज हैज रिकंबाइंड जीन्स.
ऑफ बोथ पेरेंट्स, ओके, क्योंकि मेल पेरेंट से कुछ जीन्स मिलने वाले, फीमेल पेरेंट से कुछ जीन्स मिलने वाले, जो नया इंडिविजुअल बनने वाला है दे विल हैव रिकंबाइंड जीन्स, तो ये जीन्स अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं, ओके। Hence, the new individual shows similarities with the parents for some characters and some characters different than both the parents. Okay, क्योंकि ये जीन्स कंबाइन होने वाले हैं अलग अलग तरीके से, तो जिस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं उससे कुछ कैरेक्टर्स यानी क्या, कैसे कैरेक्टर्स यानी बेसिकली कैसे दिख रहे हैं, क्या किस तरीके की बॉडी होगी, क्या स्किन कलर होगा, बाल स्ट्रेट होंगे या कर्ली होंगे, दीज आर ऑल कैरेक्टर्स, ओके। So because the genes are getting recombined here during fusion of male and female gamete, because of this recombination, some characters will be similar to our parents and some characters will be different from both the parents, okay. And that is happening because of this recombination of genes. Next, diversity in living organisms occurs due to genetic variation. Variation मतलब क्या, genetic variation बोला, राइट। जेनेटिक वेरिएशन यानी अलग अलग टाइप के जीन्स होना, उसको बोलेंगे वेरिएशन, वैरायटी। वेरिएशन यानी बेसिकली वैरायटी, अलग अलग जीन्स का वैरायटी होगा और इसकी वजह से डाइवर्सिटी मिलेगी तुम लोग को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। डाइवर्सिटी मतलब क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ। Next, genetic variation helps the organisms to adjust with the changing environment. So, जब भी environment change हो रहा है उसके साथ ही तुम्हारे जो characteristics है body के, they also have to change, right? तो अगर तुम्हारा temperature बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, then your skin should have lot of fat. Only when your skin has lot of fat, you will be protected from the cold conditions outside, right? So, अगर तुम लोग का environment change हो रहा है और उसके साथ तुम लोग को एडजस्ट करना है, उसके लिए जेनेटिक वेरिएशंस काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। सो बिकॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस कुछ लोग के स्किन में बहुत ज्यादा फैट होगा, कुछ लोग के स्किन में बहुत कम फैट होगा। जैसे एनवायरमेंट चेंज होगा सबके सब मर नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ जो जिसके पास थिक लेयर ऑफ फैट होगा वो लोग सर्वाइव करेंगे। सो ये क्यों हुआ, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन था, इसलिए जो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है उसके साथ भी वो एडजस्ट हो सकते हैं वो स्पीशीज, ओके, एंड देयर बाय मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस। इसकी वजह से हर कोई मर नहीं जाएगा, वो लोग फिर भी जिंदा रहेंगे उस स्पीशीज के कुछ ना कुछ ऑर्गेनिजम्स। ड्यू टू दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सेव देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट यानी पूरी तरीके से खत्म हो जाना। सो पूरी तरीके से खत्म होने से बचना है तो प्लांट्स एंड एनिमल्स खुद को बचा सकते हैं, किससे, जेनेटिक वेरिएशन से, जो किसमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ओके। नाउ देयर आर टू क्वेश्चंस गिवन अंडर, let's think on page number 26, okay. I know because of the coronavirus many of these questions have been taken out of your syllabus, but again I think these are very important questions to know the answers to if you want to understand the entire concept well. So I'm going to anyway discuss them so that you'll understand the concept very well. इससे सारे जो misconceptions है दूर हो जाते हैं इन सारे questions के साथ, okay. So these are the two questions. What would have been happened if male and female gametes had been diploid, okay. So let me go back a little. यहाँ पे हम लोग ने देखा, राइट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोज आर ऑल हैप्लॉइड। सो ये हैप्लॉइड होने की वजह समझो ये डिप्लॉइड होता है। यहाँ पे मेल गैमेट के पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम और फीमेल गैमेट के पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो क्या होता, ये है क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट, व्हाट वुड हैव हैपेंड if any of the cells in nature had not been divided by meiosis? Again going back, यहाँ पे meiosis होता नहीं तो क्या होता, या फिर और इस प्रोसेस के लिए नहीं, इन जनरल नेचर में फिर मियोसिस होता ही नहीं, सब कुछ माइटोसिस से ही सेल डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या होता, ओके। सो आई एम गोइंग टू वेट फॉर 5 seconds एंड आई वांट यू टू राइट द आंसर बाय योरसेल्फ। ट्राई राइटिंग द आंसर, जो जितना तुम लोग को है अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द आंसर्स, ओके। सो आई एम गोइंग टू वेट फॉर 5 seconds for you all to actually write the answers in your notebooks, okay. Okay, I hope you all had paused the video and you all are ready with at least 2 points for each of the questions, okay. So let us see the answers. First question was, what would have happened if the male and female gametes had been diploid? अगर male और female gametes diploid होते, तो again let me go back to the slide, okay, फ्लो चार्ट। यहाँ पे डिप्लॉयड है और यहाँ पे भी डिप्लॉयड है, यानी यहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है और यहाँ पे भी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो जब फ्यूज हो जाएंगे तो जाइगोट के पास क्या होगा, 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, राइट। 2 + 2 विल गिव मी 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो डिप्लॉयड नहीं होगा, जाइगोट
डिप्लॉइड नहीं होगा, उसके पास जाइगोट के पास 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, टेट्राप्लॉइड। टेट्रा मतलब 4। सो टेट्राप्लॉइड क्यों बोला, if both male and female gametes had been diploid यानी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, इसलिए 2n लिखा है, देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन दोनों साथ में आने के बाद टेट्राप्लॉइड यानी 4n, यानी 4n मतलब क्या, 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स वाले ऑफस्प्रिंग्स यानी वो जो नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है पेरेंट्स से आफ्टर रिप्रोडक्शन, दैट इज नोन एज ऑफस्प्रिंग्स। ओके, उसका मतलब है ऑफस्प्रिंग। सो जो ऑफस्प्रिंग है वो टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, and that will be genetically unstable and it can cause abnormalities। अगर बहुत ज्यादा इतने एक ही क्रोमोसोम के 4 सेट्स है तो वो जेनेटिकली बहुत अनस्टेबल हो जाएगा और उसमें एबनॉर्मेलिटीज आ सकती है। एबनॉर्मेलिटीज बेसिकली नॉर्मल के ऑपोजिट है, नॉर्मल का ऑपोजिट वर्ड है एबनॉर्मल। ओके, एबनॉर्मल यानी हमारा जो नॉर्मल बॉडी है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, what would have happened if any of the cells in nature had not been divided by meiosis? कोई भी meiosis से सेल डिवाइड नहीं हो रहा। ओके, ड्यूरिंग meiosis reduction division produces 4 haploid cells। ओके, सो इफ यू रिमेंबर meiosis में एक डिप्लॉइड सेल होता है जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, वो 4 हैप्लॉइड सेल्स में ट्रांसफॉर्म होता है। हैप्लॉइड यानी जिसमें एक ही सेट है क्रोमोसोम्स का, तो 2 सेट वाले क्रोमोसोम्स में से 4 एक सेट वाले क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो रहे हैं ना, जितने सेट्स होंगे वो रिड्यूस हो रहे सेट्स, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। ओके, तो ड्यूरिंग meiosis रिडक्शन डिवीजन प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड सेल्स, और ये जो हैप्लॉइड सेल्स होंगे वो क्या होंगे, वो बेसिकली गैमेट्स होंगे। एग्जांपल ह्यूमन स्पर्म एंड egg cell हो सकता है, वो ह्यूमंस में अगर वो हो रहा है तो। ओके, सो बेसिकली जो हैप्लॉइड सेल्स है वो गैमेट्स है, और ये किसमें से होता है, फ्रॉम अ सिंगल डिप्लॉइड सेल। एक डिप्लॉइड सेल में से 4 हैप्लॉइड बनते हैं। हेंस इफ meiosis does not occur, it will result in doubling of chromosomes in each successive generation। We saw, right, अगर मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों अगर डिप्लॉइड है तो जाइगोट टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, सो डबल हो जाएंगे, हर बार क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे। सिर्फ meiosis एक प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं, तो अगर meiosis होगा ही नहीं तो कभी हाफ होते ही नहीं रहेगा, पर हमेशा अगले जनरेशन में क्रोमोसोम्स बढ़ते जाएंगे। So it will result in doubling of chromosome in each successive generation, which will result in formation of abnormalities, same as the previous question का आंसर। ओके, जैसे तुम लोग का जीन्स बढ़ते जाएंगे, क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ते जाएगा तुम्हारे सेल्स में, तो एबनॉर्मेलिटीज आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ओके, व्हाई इज दैट हैपनिंग, बिकॉज ऑफ जेनेटिकली अनस्टेबल हो जाएगा इतने सारे क्रोमोसोम्स। ओके, if meiosis does not occur, the chromosome number of parents and their offspring will differ in every generation। क्योंकि meiosis अगर नहीं होगा तो पेरेंट में समझो 2n है, सो ऑफस्प्रिंग में उसमें कितना हो जाएगा, 2n का डबल 4n, उनके ऑफस्प्रिंग में कितना हो जाएगा, 4n का डबल 8n। सो हर जनरेशन में क्रोमोसोम का नंबर अलग अलग होगा। ओके, हेंस नो स्पीशीज विल मेंटेन इट्स कैरेक्टर। तो हर अलग जनरेशन बहुत ही कंप्लीटली डिफरेंट दिखेगा क्योंकि उसके क्रोमोसोम का नंबर ही काफी चेंज हो गया। ओके, सो स्पीशीज का जो कैरेक्टर्स है, यानी हमें पता है, राइट, ह्यूमंस तो ऐसे ही दिखेंगे, उनके 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 10 उंगलियां होंगी, एक्सेट्रा, वो सब चेंज हो सकता है। ऑल्सो देयर विल बी नो क्रॉसिंग ओवर, ओके, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर, ये वर्ड कहीं पे याद आ रहा है? If you all have seen and made notes and studied my chapter 2 के सारे learning sessions, you all should remember what is crossing over। Crossing over is a very important step in meiosis। So let me pull that diagram up। So यहाँ पे मेटाफेज 1 वाला जो स्टेप है meiosis में, वहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है, राइट। होमोलोगस क्रोमोसोम्स बाजू बाजू में आ जाते हैं और फिर वो लोग एक दूसरे के साथ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब सेम टाइप के क्रोमोसोम, ओके, सेम हाइट वाला, सेम थिकनेस वाला क्रोमोसोम, ओके, सेम टाइप वाला क्रोमोसोम को बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। सो meiosis में क्रॉसिंग ओवर होता है ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वो अभी नहीं होगा। ओके, thus there will be no variation with respect to changing environment in progeny। इसकी वजह से, क्योंकि वो जब क्रॉसिंग ओवर होता है तभी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, तब रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, बट अभी वो नहीं होने वाला है, तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहेंगे, कुछ चेंज नहीं आएगा। किसमें चेंज नहीं आएगा? प्रोजेनी में। अगेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेनी?
एक पेरेंट से नया इंडिविजुअल जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्रोजेनी. इट्स सेम एज ऑफस्प्रिंग. ओके, ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी दोनों का सेम मीनिंग है. वो जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो गया रिप्रोडक्शन के बाद, दैट इज नोन एज ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी. सो उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, पेरेंट जैसा एकदम सेम टू सेम होगा. ओके, एंड दैट इज डेंजरस. व्हाई? बिकॉज जैसे एनवायरमेंट चेंज होगा, विद चेंजिंग एनवायरमेंट वो लोग अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे, एंड हेंस उनका जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आ जाएगा, और उसके वजह से विच में लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज. पूरा पूरा स्पीशीज खत्म हो सकता है, क्योंकि एनवायरमेंट चेंज हो गया बट ये लोग के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज ही नहीं हुए, इसकी वजह से वो लोग एक्सटिंक्ट हो गए. एक्सटिंक्ट होना यानी खत्म हो जाना. उस स्पीशीज का कोई भी एनिमल पूरे अर्थ पे नहीं मिलेगा. सो दैट इज one risk that we have if there is no meiosis. Okay, so that's why meiosis is very important in our nature. Okay, so this can also be asked as a give reason. Okay, give reason could be because if there is no meiosis in the nature, it is going to lead to extinction of species. This could also come as a give reason. Okay, next, sexual reproduction in plants. Okay, so flower is the structural unit of sexual reproduction in plants. Okay, इसका मतलब क्या? स्ट्रक्चरल यूनिट. स्ट्रक्चरल यूनिट यानी रिप्रोडक्शन का किसी भी प्लांट में जो काम है वो हर फ्लावर करने वाला है. ओके, बाकी प्लांट से कुछ लेना देना नहीं है. वो जो फ्लावर है वही सब काम करने वाला है रिप्रोडक्शन का. फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन. न्यूरॉन का जो काम है वही पूरे ब्रेन का काम है. या फिर किडनी में स्ट्रक्चरल यूनिट इज नेफ्रॉन. नेफ्रॉन का जो काम है पूरे के पूरे किडनी का भी वही काम है. सिमिलरली रिप्रोडक्शन अगर तुम्हें फ्लावर प्लांट में स्टडी करना होगा, ऑल यू हैव टू सी इज फ्लावर. ये फ्लावर में ही पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. Okay, that's the meaning of the first point. This is the structural unit of sexual reproduction in plants. Okay. Next, it consists of 4 floral whorls. Okay. So इसमें 4 floral whorls है. Okay, उसका नाम क्या? Calyx, corolla, androecium and gynoecium arranged in sequence from outside to inside. तो सबसे बाहर calyx होगा, उसके अंदर कोरोला होगा, उसके अंदर एंड्रोशियम होगा, उसके अंदर गाइनोशियम होगा. ओके, सो आई नीड टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस, राइट? सो यू ऑल कैन मेक अ शॉर्ट फॉर्म व्हिच यू ऑल विल वेरी इजीली रिमेंबर. जब भी तुम लोग शॉर्ट फॉर्म्स बना रहे हो, इफ यू ऑल रिमेंबर, हम लोग ने अलग अलग स्टेप्स ऑफ माइटोसिस के लिए बनाया था, राइट? आई प्रिफर मलयालम एंड तमिल. सो वैसे कुछ तो जितना तुम लोग अलग और अजीब सेंटेंस बनाओगे उतना इजीली याद रहेगा. ओके, सो मैंने एक सेंटेंस दिमाग में बनाया था कि अपने बोन्स का कैल्शियम का लेवल अच्छा रखने के लिए कोरोला गाड़ी में से एंड्रू जिम में जाके एक्सरसाइज करने वाला है. ओके, अगेन इट्स नॉट, आई वुड हाईली एनकरेज कि तुम लोग खुद के सेंटेंसेस बनाओ. तुम लोग जितने खुद के सेंटेंसेस बनाओगे, जितने वियर्ड और जितने अजीब और जितने फनी होंगे, उतना ज्यादा इजीली तुम लोग को याद रहेगा एग्जाम में. ओके, सो दिस इज माई अटेम्प्ट, यू ऑल कैन मेक योर्स याद रखने के लिए. ओके, सो व्हाट इज माई कैल्शियम के लेवल्स मेंटेन करने के लिए कोरोला गाड़ी में से एंड्रू जिम में जाके एक्सरसाइज करने वाला है. ओके, सो कैलिंग्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. सबसे बाहर कैलिंग्स, एंड यू कैन सी इट हियर इन द डायग्राम ऑल्सो. ओके, सो बेसिकली कोई भी फूल होगा, फूल के एकदम नीचे ग्रीन कलर का कुछ चीज दिखता है, राइट? इफ यू हैव हेल्ड अ रोज, रोज के एकदम नीचे वाले साइड पे ग्रीन कलर का कुछ तो दिखता है, दैट इज बेसिकली योर कैलिंग्स. ओके, और कैलिंग्स को सीपल भी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट कोरोला. सो कोरोला बेसिकली तुम लोग का पेटल्स, और पेटल्स कैसे अलग अलग कलर्स के होते हैं, राइट? रोज में वो रेड कलर के होंगे, वैसे हर अलग अलग फ्लावर में अलग अलग रंग के पेटल्स दिखेंगे. उस पेटल्स का साइंटिफिक नेम क्या है? कोरोला. नेक्स्ट, एंड्रोशियम. सो यहाँ पे ऐसे व्हेन यू लुक इनसाइड अ फ्लावर, ऐसे छोटे छोटे चीजें बाहर निकल रही होती है, राइट? दोज आर बेसिकली योर एंड्रोशियम. ओके, एंड्रोशियम के भी दो पार्ट्स है, एंथर एंड फिलामेंट, दैट वी विल सी इन डिटेल लेटर. ओके, बट जस्ट नो कि ये जो छोटे छोटे चीज बाहर निकल रहे हैं फ्लावर के अंदर से, दोज आर बेसिकली एंड्रोशियम. ओके, और एकदम सेंटर में जो एक लंबा चीज होगा, दैट इज नोन एज गाइनोशियम. ओके, सो इफ यू सी बाहर एकदम कैलिंग्स, बीच में उसके अंदर थोड़ा सा कोरोला विच इज पेटल्स, उसके थोड़ा अंदर फिलामेंट, और एकदम सेंटर पे विल बी योर गाइनोशियम. अगेन गाइनोशियम के 3 अलग अलग पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, that we will see in detail later. For now you all need to remember only these 4 parts. Okay, next, androecium and gynoecium are called essential whorls.
ओके क्यों एसेंशियल क्यों बोला है? क्योंकि ये लोग ही रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके फ्लावर का काम क्या है? रिप्रोडक्शन, राइट? सो जो रिप्रोडक्शन का काम है वो मेन काम एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम करेंगे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एसेंशियल वॉल्स। एसेंशियल यानी एकदम इंपॉर्टेंट, ओके। whereas calyx and corolla are called accessory walls। accessory मतलब क्या? accessory यानी something extra जिसको ऐड करके उसको और यूजफुल बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। एक्सेसरी, एक्सेसरी यानी मेन चीज वो नहीं है, वो कुछ तो एक्स्ट्रा है जिससे थोड़ा और फंक्शनैलिटी में इंक्रीज हो रहा है, या फिर प्रोटेक्शन इंक्रीज हो रहा है, या फिर यूजफुलनेस इंक्रीज हो रहा है। ओके सो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर एसेंशियल वॉल्स। एंड वॉल्स बेसिकली क्या है? फ्लावर्स के अलग अलग पार्ट्स। सो बाहर का जो लेयर होगा उसको एक वॉल बोलेंगे, फिर अंदर का एक जो लेयर होगा उसको एक वॉल बोलेंगे। तो जो अलग अलग लेयर्स है फ्लावर के उसको वॉल्स बोल रहे हैं हम लोग। ओके सो कैलिक्स एंड कोरोला आर नोन एज एक्सेसरी वॉल्स बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इनर वॉल्स। उनका काम क्या है? बस अंदर के जो वॉल्स है, अंदर के जो लेयर्स है उसको प्रोटेक्ट करना है। वो लोग खुद रिप्रोडक्शन में कोई पार्ट नहीं लेने वाले हैं। ओके नेक्स्ट, a flower is called bisexual if both whorls, that is androecium and gynoecium, are present in the same flower। अगर सेम फ्लावर में एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी है, they will be called as bisexual। again what is the meaning of bi? bi मतलब टू। ओके सो दो सेक्स एक ही फ्लावर के अंदर होंगे, those will be known as bisexual। ओके सो एक फ्लावर को बाइसेक्सुअल कब बोलेंगे? जब दोनों एंड्रोशियम और गाइनोशियम सेम फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होगा। एग्जांपल हिबिस्कस। ओके हिबिस्कस में दोनों एंड्रोशियम और गाइनोशियम सेम फ्लावर में होते हैं। नेक्स्ट, अ फ्लावर इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या? यूनि मतलब एक, सो यूनिसेक्सुअल यानी एक ही सेक्स वाला। ओके सो फ्लावर को यूनिसेक्सुअल कब बोलेंगे? व्हेन वन ऑफ द अबव मेंशन्ड टू वॉल्स इज प्रेजेंट इन द फ्लावर। या तो एंड्रोशियम है या तो गाइनोशियम है, दोनों नहीं है एक फ्लावर में। ओके इफ ओनली एंड्रोशियम इज प्रेजेंट, सिर्फ एंड्रोशियम है, तो हम लोग उसको मेल फ्लावर बोलेंगे, और सिर्फ गाइनोशियम है तो उसको हम लोग फीमेल फ्लावर बोलेंगे। ओके एग्जांपल पपाया। सो पपाया फ्लावर का फोटो भी यहाँ पे राइट साइड में दिया है। सो पपाया फ्लावर में एंड्रोशियम एक टाइप के फ्लावर में होगा और गाइनोशियम दूसरे फ्लावर में होगा। सेम फ्लावर में एंड्रोशियम गाइनोशियम नहीं मिलेगा। सो जिसमें एंड्रोशियम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे वाले में एंड्रोशियम है, उसको मेल फ्लावर बोलेंगे, और ऊपर वाले में गाइनोशियम है तो उसको फीमेल फ्लावर बोलेंगे। ये किसका है? एग्जाम्पल पपाया का, जो एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर बेयर करता है। वजह हिबिस्कस में जो फ्लावर होगा वो बाइसेक्सुअल होगा, सेम फ्लावर के अंदर दोनों एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मिलेंगे। अगेन इफ यू हैव नोटिस्ड, बहुत सारे स्लाइड्स में मैंने डू नॉट कॉपी लिखा है। द रीजन इज आई डोंट वांट यू ऑल टू वेस्ट टाइम कॉपिंग नोट्स फ्रॉम माय वीडियोस। most of this you all can find in the textbook। okay so just open your textbook and you all can read all of this sentence by sentence, word to word in your textbook। okay next, many flowers have the stalk for support। okay many flowers have the stalk for support। तो बेसिकली अगर तुम लोग ने गुलाब का फूल लिया तो तुम जिस चीज को पकड़ रहे हो उसको स्टॉक बोलते हैं। ओके वो किसके लिए? फ्लावर के सपोर्ट के लिए, राइट? एक लंबा सा ऐसा स्टॉक होगा उसके ऊपर फ्लावर होगा। सो जिस जहां पे तुम लोग पकड़ते हो किसी भी फ्लावर को उसको बोलेंगे स्टॉक, और उसका अगेन एक साइंटिफिक नेम है, टेक्निकल नेम है, उसको बोलते हैं पेडिसिल। ओके यहाँ पे इफ यू सी डायग्राम में भी वो लोग ने लेबल किया स्टॉक को, विच इज नोन एज पेडिसिल, जस्ट अ फैंसियर नेम, बायोलॉजी वाला नेम स्टॉक के लिए। एंड नेक्स्ट, सच फ्लावर्स आर कॉल्ड पेडिसिलेट। जिसको स्टॉक है उसको बोलेंगे पेडिसिलेट, जिसको स्टॉक नहीं है उसको पेडिसिलेट नहीं बोल सकते। ओके नेक्स्ट, whereas flowers without stalk is called sessile। let me get this pronunciation correct। yes sessile। okay so जिसको भी स्टॉक नहीं है that flower we will call as sessile। okay और जिसमें स्टॉक है we will call as pedicellate। so next, androecium is male whorl and the members are called stamens। सो वी सॉ राइट, एंड्रोशियम मेल पार्ट है, गाइनोशियम फीमेल पार्ट है फ्लावर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सो एंड्रोशियम के अंदर जो कोई भी पार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टेमन्स। ओके एंड गाइनोशियम के अंदर जो कुछ भी पार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे कार्पेल्स। ओके अनदर थिंग टू रिमेंबर, आई नो हम लोग ने बहुत सारे नए वर्ड्स यहाँ पे आज सीखे, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम कि तुम लोग कितनी बार सुन रहे हो और बार बार सुन रहे हो, तो यू ऑल विल गेट कंफर्टेबल विद ऑल दीज वर्ड्स। ओके व्हाट वुड हेल्प इज if you draw this diagram and you label each everything by yourself बिना देखे, तो तुम लोग और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जो
टर्म्स है वो. जस्ट दैट आज हम लोग ने बहुत सारे अलग अलग नए टर्म्स पढ़े. The more time you'll hear the terms and the more times you'll read this or watch this video, it will be more comfortable. Okay. So androecium के जो members है उसको हम लोग बोलेंगे stamens और gynoecium के जो members है उसको हम लोग बोलेंगे carpels. Okay. So that's it for this learning session. The new words that we learned were, first was offspring, which is new individual formed from a parent, और progeny का भी same meaning है. Okay. New individual formed from a पेरेंट. वो जो नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है उसको प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं. फ्यूजन यानी साथ में आ जाना. ओके. कमिंग टुगेदर. एंड एक्सेसरी इज अ थिंग विच कैन बी एडेड टू समथिंग एल्स इन ऑर्डर टू मेक इट मोर यूजफुल. जो ऑलरेडी चीज है उसमें कुछ तो नया चीज ऐड करना जिससे वो और यूजफुल बन जाए. दैट इज नोन एज एक्सेसरी. ओके. So that's it for this learning session. I hope you all understood this learning session. There were many new terms that we learned today, new words we learned today. So I highly recommend that you all draw the diagram of parts of plants again in your notebooks. मैंने कहीं पे भी कॉपी करने नहीं बोला था, but even then I will tell you all कि एक बार देख लो टेक्स्ट बुक में डायग्राम and by heart the diagram and then copy it in your notebooks without seeing. I think that will help you to process the new words that you learned today very well. Okay, so that's it for this learning session. I hope you all understood and we will meet in the next learning session. Till then, peace and bye.